السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے لیے قاری نیب کا بیان لے کے آئے ہیں، انشاءاللہ پوری دیکھیں۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں او میرے یونس علیہ السلام پیغمبر، او میرے نبی، میں نے تمہیں ڈرانے کا حکم دیا، میں نے تمہیں حکم دیا کہ تم لوگوں کو بتاؤ، عذاب سے ڈراؤ، لیکن تاریخ مقرر کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو امید آپ حضرت خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج کے اس ویڈیو میں پھر سے قاری حنیف ملتانی صاحب کا ایک بیان لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کے ٹاپک اور موضوع ہے کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں۔ اس بیان کو توجہ سے سنیے گا۔ چلیے میں بھی آپ کے ساتھ سنتا ہوں اور آپ بھی میرے ساتھ ساتھ اس بیان کو سنیے گا۔ سیدنا یونس علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، بہت عظیم نبی، قرآن کریم میں جن کے نام سے پوری سورت قرآن مجید میں نازل فرمائی مالک کائنات نے۔ اللہ کا پاک پیغمبر صبح کو اٹھتے ہیں، بازار جاتے ہیں، بستی بستی جاتے ہیں، اور ان کو جا جا کر ہر وقت یہی بتاتے ہیں، یا قوم، او میری قوم، او برادری، او خاندان کے لوگوں، او شہر نینوا موصل کے لوگوں، او میں تمہاری طرف نبی بن کر آیا، میرا ایک پیغام سنو، اعبدوا اللہ۔ میں تمہیں ایک پیغام دینے آیا، ایک خبر دینے آیا، ایک ہدایت کرنے تمہیں آیا، ایک اطلاع دینے تمہیں آیا۔ وہ میری اطلاع یہ ہے، اعبدوا اللہ، اس مالک کائنات کی عبادت کرو، اس کی نظر نیازیں دو، اسی کو مشکل کشا مانو، اسی کو حاجت روا مانو، اسی کو روزی میں کمی کرنے والا، زیادتی کرنے والا۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نہ چاہوں ایک دانہ روزی کا نہیں بڑھ سکتا، میں گھٹا دوں کوئی بڑھانے والی طاقت نہیں، میں بڑھا دوں تو گھٹانے والا کوئی نہیں۔ فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ او میرے بندے، تیرا تو 4 فٹ کا بدن ہے، 5 فٹ کا تیرا قدر ہے، 5-6 فٹ کے مقدار میں سارا تیرا نظام ختم ہے۔ میں وہ رب ہوں جو اتنی بڑی رات لاتا ہوں، سارے جہان کو چھپا لیتی ہے۔ یہ اتنا بڑا دل، یہ سورج کا نظام، یہ ستاروں کا نظام کون چلا سکتا ہے؟ یہ رات کو چند بلب جلاتے ہو، تھوڑی سی روشنی کرتے ہو، گھروں میں بجلی استعمال کر لیتے ہو، اتنا بڑا بل آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں او میں اگر سورج کا بل لیتا تو تمہارا بیڑا ہی غرق ہو جاتا۔ سارے جہان کو میرا سورج منور کرتا ہے، میں نے کبھی تمہیں بل بھیجا؟ ستاروں کی روشنی کا کوئی بل نہیں، چاند کی روشنی کا کوئی بل نہیں، سورج کی روشنی کا کوئی بل نہیں۔ رات کو اندھیرا چھاتا ہوں، ٹھنڈ کرتا ہوں، دن میں گرمی پہنچاتا ہوں۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ میں رات کا خالق و مالک، دن کا خالق و مالک، کبھی رات کو بڑھاتا ہوں، دن کو گھٹاتا ہوں، کبھی دن کو بڑھاتا ہوں، رات کو گھٹاتا ہوں۔ تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی۔ او لوگوں، زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ پیدا کرنے والا میرے سوا کون ہے؟ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ ایک ایک آدمی کو کروڑا پتی، لاکھا پتی، اربا پتی بنانے والا میرے سوا کون ہے؟ اللہ کا پاک پیغمبر جناب یونس علیہ السلام بازار میں کھڑے ہو کر تبلیغ کرتے ہیں اور لوگوں کو فرماتے ہیں اعبدوا اللہ۔
अल्लाह की इबादत करो, उसी की पूजा करो, उसी की नजर न्याज दो, वही खालिक और मालिक है। मालकुम मिन इलाहिन गैरू, उसके सिवा इला कोई नहीं, उसके सिवा माबूद कोई नहीं, उसके सिवा तेरी मेरी बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं, उजड़ों को बसाने वाला कोई नहीं, बसे बसाओं को उजाड़ने वाला कोई नहीं, बादशाह के तख्त से उठाकर फांसी पे लटकाने वाला उसके सिवा कोई नहीं। जनाब यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारा दिन तबलीग करते हैं, राहगीरों को बुला बुला कर समझाते हैं, दुकानदारों को समझाते हैं, वह हुक्मरानों को समझाते हैं, मगर पाक पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम की बात को ठुकराया, उल्टा नबी का मजाक उड़ाया, नबी को मारते थे रोजाना। अल्लाह का पाक पैगंबर मार खा के आता है, रात को सर सजदे में रख के रोता, इलाही मैं तेरा नाम पहुंचाने का हक अदा न कर सका। मुद्दत गुजर गई, अरसा गुजर गया इसी आलम में। आप सोचते होंगे कि नबी थकते नहीं थे, और नबी थके कैसे? अल्लाह ने उनका खमीर ही अलग बनाया। नबी कोई मेरे तेरे जैसे होते हैं, और मेरे तेरे जैसे तो सहाबा नहीं, मेरे तेरे जैसे कुतुब और अब्दाल नहीं, उनका भी सारी चीजें अल्लाह पाक निराली बनाता है। नबी की आंख और होती है, नबी की जुबान और होती है, नबी का हाथ और होता है। अरे तू हाथ उठाए, मुमकिन है चमगादड़ पेशाब कर जाए, नबी यूं आंख उठाए तो किबला बदल जाए। कौन कहता है तुम्हें कि नबी हम जैसा होता है? वो बराए रास्त खुदा का नुमाइंदा अल्लाह तबारक व तआला उनकी रूहों को ही अलग बनाता है, उनके जिस्मों को अलग बनाता है। और ये बात लिख लो दिल की तख्ती पे, नबी नस्ल के एतबार से भी, नसब के एतबार से भी, सूरत के एतबार से भी, शक्ल के एतबार से भी भेड़ा नहीं होता, कोजा नहीं होता। नबी की हर चीज बिल्कुल सारे जान से निराली खूबसूरत हसीन होता है नबी। मगर मेरी बात ये भी लिख कर ले जाओ, खुदा की कसम, अल्लाह की तौहीद की, बारी ताला की तौहीद के लिए, अल्लाह के एक होने को बयान करने के लिए बड़े बड़े खूबसूरत चेहरों पे पत्थर पड़े। आज भी बाजार में, गली में, दुकान पे बैठ के जब कहोगे ना अल्लाह के सिवा कोई नहीं, अल्लाह पाक जल्ले शानु आलिमुल गैब है, मेरे तेरे दिलों के हाल को जानता है। फरमाया वल्लाहु अलीमुम बिदात सुदूर, अल्लाह दिलों के हाल को जानता है। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में वजाहत कर दी। 24वें पारे का दूसरा रुकू, कभी तर्जमा भी देख लिया करो। फरमाया वइज़ा ज़ुकिरल्लाह वहदहुश्मा अज़्ज़त क़ुलूबुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरा। अल्लाह ताला खुद कुरान करीम में फरमाते हैं, जब मेरी तौहीद बयान करोगे, मेरा एक होना बयान करोगे, मेरा खालिक और मालिक होना बयान करोगे, मेरा रब होना बयान करोगे, कुरान का तब वहदहुश्मा अज़्ज़त क़ुलूबुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरा। शिरक करने वालों के चेहरे बिगड़ जाते हैं। जितने भी शिरक अल्लाह की जात के खिलाफ करने वाले हैं, तौहीद सुनकर मुंह बिगड़ जाता है, चेहरे की खुशी बदल जाती है। और कुरान करीम ने साफ लफ्जों में कहा, तर्जमा जाके देखना, एक लफ्ज भी गलत निकल जाए, जो चोर की सजा वो मेरी सजा। फरमाया वइज़ा ज़ुकिरल्लज़ीना वहदहुश्मा अज़्ज़त क़ुलूबुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरा वइज़ा ज़ुकिरल्लज़ीना मिन दूनिही इज़ा हुम यस्तबशिरून। मैं नहीं कहता, ये अल्लाह का कुरान कहता है, जब शिरक की बात करोगे चेहरे यूं खिल जाएंगे। ये है हमारी जमात का आदमी, ये है अपना आदमी। पैगंबर की बात पसंद नहीं, सहाबा किराम
کلام کی بات پسند نہیں، اللہ کے قرآن کی بات پسند نہیں، اور جو کسی نے بکواس بنا دی وہ پسند ہے۔ اور میں تو دعوے سے کہتا ہوں اولیاء کرام کا بھی عقیدہ نہیں جو لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑا ولی، بہت بڑا بزرگ، شہر قصور میں مزار ہے بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کا۔ فرماتے ہیں علم نہ لو اشراف نہیں ہو دے، علم نہ لو، علم نہ لو اشراف نہیں ہوں دے، جڑے ہوں دن ذات کمینے، اور پیتل پلیت سونا نہیں بندا، پیتل پلیت سونا نہیں بندا، توڑ جڑیے لال نگینے، اور شوم کلو خیرات نہیں ملدی، توڑے ہو مال خزینے، بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملدی، توڑے مریے شہر مدینے۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک نہ جانو، کوئی اس کا ساتھی نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں۔ پھر تمہیں کئی لوگ یہ کہیں گے یہ اتنا بڑا نظام اللہ خود اکیلا کیسے چلا سکتا ہے؟ جنوں کا نظام، فرشتوں کا نظام، بندوں کا نظام، جانوروں کا نظام، دریاؤں سمندروں کا نظام، چاند سورج ستاروں کا نظام، آسمانوں کا نظام، زمینوں کا نظام، یہ اکیلا کیسے چلائے؟ فرمایا او لوگوں مجھے اپنے اوپر قیاس نہ کرو، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، میری تو وہ ذات ہے، میں کہتا ہوں ہو جا بس وہ ہو جاتا ہے۔ مجھے کوئی لیبر درکار ہے، مجھے انجینئر نہیں چاہیے، مجھے مستری نہیں چاہیے، مجھے کوئی پارلیمنٹ نہیں چاہیے، کوئی میرا مشیر نہیں، کوئی میرا وزیر نہیں، کوئی میرا ساتھی نہیں۔ اللہ والوں نے بڑی بڑی باتیں بتلائی۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اللہ والا بزرگ کہتا ہے عدل کریتا تھر تھر کمبن، عدل کریتا تھر تھر کمبن، اجیا شانہ والے ہو، فضل کریتا بخشی جاون، اور میں جے مکالے ہوں۔ بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ بزرگ ہے، ولی ہے، فرماتے ہیں اٹھ فرید جھاڑو دے وچ مسیت، تو ستا رب جاگ دائی تیری دادے نال پریت۔ جناب یونس علیہ السلام سارا دن تبلیغ فرماتے ہیں، مار کھاتے ہیں، گھر لہوان آتے ہیں، زخمی آتے ہیں، اللہ کا پیغام سارا دن پہنچاتے ہیں۔ جب حد ہو گئی اللہ کے نبی نے تبلیغ کی، سمجھایا سمجھایا سمجھایا، مدت گزر گئی، لوگ کچہریوں سے دھکا دے کر بازار میں کر جاتے، بازار سے دھکے دے کر جنگل میں نکال جاتے۔ اللہ کا پیغمبر پھر وہیں جا کے کھڑا ہوتا ہے اور اعلان کرتا ہے انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ او لوگوں میں اللہ کا نبی، میری بات کو تسلیم کرو ورنہ بڑا عذاب آئے گا۔ مسخرے لوگ تھے، بگڑی ہوئی برادری تھی، بگڑے ہوئے لوگ تھے، بدماش قسم کے۔ جب اللہ کے پیغمبر یونس علیہ السلام نے بار بار فرمایا اللہ کا قہر آئے گا، اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ کی ناراضگی آ جائے گی، بعد آ جاؤ، تو پھر پتہ کیا حرکت کی؟ سب نے اکٹھے ہو کے آئے، برادری کے لیڈر آئے، برادری کے سردار آئے، علاقے کے لوگ آ کے کہنے لگے تو جو روز روز کہتا عذاب آئے گا عذاب آئے گا، وہ کب آئے گا؟ اندازہ لگا، بجائے ڈرنے کے، بجائے خوف کھانے کے، اللہ سے معافی مانگنے کے بجائے، اللہ کے سامنے رونے کے بجائے، عاجزی کرنے کے بجائے دل پوچھنے آئے
इतनी मुद्दत गुजर गई, तुझे अजाब 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 करते करते हम भी इंतजार कर कर के थक गए, वो कब आएगा? सारे अक्लमंद बैठे हो, मुसलमान बैठे हो, खाने खुदा में बैठे हो। ये जो बात अल्लाह का नबी करता था, अजाब आएगा अजाब आएगा, ये तो अल्लाह की तरफ से बात थी। बस इतनी सी भूल हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम से हो गई। जब इन्होंने बार बार पूछा ना कब आएगा, तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया 40 दिन के बाद अजाब आ जाएगा। अंदाजा लगाओ, जिस नबी ने अल्लाह की तौहीद के लिए अरसा मार खाई हो, एक मुद्दत दराज तक तकलीफ उठाई, परेशानियां झेली, रात दिन मार खाई, अगर इतना सा लफ्ज मुंह से निकल ही गया तो हुआ क्या? लेकिन अल्लाह पाक फरमाते हैं, ओ मेरे यूनुस अलैहिस्सलाम पैगंबर, ओ मेरे नबी, मैंने तुम्हें डराने का हुक्म दिया, मैंने तुम्हें हुक्म दिया कि तुम लोगों को बताओ, अजाब से डराओ, लेकिन तारीख मुकर्रर करने वाले आप कौन होते हैं? इधर देखना है, बच्चा होगा कोई, कौन है आप तारीख बयान करने वाले? क्यों आप तारीख बताते हैं? बस इस पर अल्लाह तबारक व तआला जल्ले शानहू नाराज हो गए। इस्लाम का ये मसला है, जितना करीबी हो अल्लाह पाक जल्ले शानहू नबी की जरा सी भूल बर्दाश्त नहीं करता, और मेरे तेरे पहाड़ गुनाहों के माफ कर देता है। नबी से अगर जरा सी लग़ज़िश हुई, जरा सी भूल हुई, मालिक के कायनात फौरन पकड़ता है। मेरे नबी होकर आपने ऐसा किया, मेरे पैगंबर होकर सर पे ताजे नबूवत हो, और आपने इतनी सी बात क्यों कह दी? बस अल्लाह पाक जल्ले शानहू नाराज हो गया। बिगड़ी हुई कौम थी, जिन गिनते 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 दिन करीब आने लगे, और वो रोज बदमाशी करने मस्खरी करने आते। ऐ यूनुस नबी, कितने दिन रह गए? वो कब आएगा तेरा अज़ाब? कहां गया तेरा खुदा? तेरा रब किधर गया? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को फिक्र ला कोई अब क्या बनेगी, आसमान से वही कोई नहीं आती, सिलसिला का मुनक़ते हो गया। परेशान है यूनुस अलैहिस्सलाम। और एक बात तवज्जो करके और सुन लो, उस वक़्त उस मुल्क में झूठ बोलने वाले को बड़ी सजा दी जाया करती थी, चाहे कोई भी हो। उस जमाने में झूठ लोगों में राइज नहीं था। अब यूनुस अलैहिस्सलाम को फिक्र पड़ी कि अगर मेरी बात झूठ साबित हुई तो ये लोग मेरा खुदा जाने क्या हाल करेंगे। और वो रोज कहते थे कि इतने दिन रह गए, याद रख, फिर हम तुझे देखेंगे, फिर तुझे तेरा यूं करेंगे, तेरा यूं करेंगे। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम जलीलुल कदर पैगंबर शहर नैनवा और मूसल से लेकर अपने बाल बच्चों को बाहर निकल पड़े। 2 बच्चे हैं, एक बीवी है, साथ लेकर चल दिए। आगे एक बहुत बड़ी नहर आई, पानी का नाला आया, जिसमें से बच्चों का गुजरना मुश्किल था। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम ने एक बच्चे को कांधे पे बिठाया, एक बच्चे को पीछे बिठा दिया दरख्त के नीचे, बीवी को वहां छोड़ दिया, एक बच्चे को कांधे पे बिठाकर पानी से पार छोड़ाऊं। जब पानी के दरमियान में अल्लाह का पाक पैगंबर अल्लाह का नबी पहुंचा, पानी जोर से आया, मझधार आया, एक रेला आया, यूनुस अलैहिस्सलाम के हाथों से बच्चा छूट गया। कि वो जो बच्चा पीछे छोड़ा था जंगल में दरख्त के नीचे, भेड़िया आया और उस बच्चे को मुंह में उठाकर कमर पे लेके चला। उधर बच्चे ने चीख मारी, बच्चा चिल्लाया, अब्बा अब्बा, मेरे अब्बा, मैं खा लिया, मुझे ले चला। बाप की पिदरी शफकत ने जोश मारी, यकदम जो यूं मुड़ के देखा, पैर उखड़ गए। वो कांधे वाला बच्चा भी चला गया और वो दूसरे बच्चा भी चला गया।
इसी को मौलाना इसहाक साहब देलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, फरमाते हैं भेड़िए के मुंह में है नूरे नजर और अब्बा अब्बा कर रहा था वो पिसर। एक को पानी बहा के ले गया, एक को भेड़िया उठा के ले गया, दोनों बच्चे खत्म। इरादा किया चलो बीवी को तो वापस ले आऊं। दरख्त के नीचे बिठा करके आया था, एक शहजादा आया, दरख्त के नीचे खूबसूरत औरत को देखकर वो पकड़ के लेके चला। जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम की अहलिया को शहजादा घोड़े पे बिठा के जबरदस्ती लेके चला। हालांकि वो ये कहती रही ज़ौजाए यूनुस नबी है ये कनीज, हाय तुम्हें इतनी नहीं आखिर तमीज। ओ बादशाह के बेटे, मैं आम औरत नहीं, मैं कोई आम लड़की नहीं, मैं आम खवातीनों में से नहीं, मैं तो अल्लाह के नबी की घरवाली हूँ। मेरी इज्जत आबरू की रखवाली वही करेगा। अल्लाहु अकबर। शहजादा उठाकर अपने महल में ले गया। जब करीब आने की कोशिश करता पागल हो जाता, दिमाग खराब हो जाता, सारे बदन में उसके दर्द हो जाता। जब तक तौबा करके पीछे ना हटता वो तकलीफ ना जाती। जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम ने देख लिया, बीवी भी चली गई, बच्चे भी चले गए, अल्लाह पाक की नाराजगी हुई, खानदान सारा गया, मैं अकेला रह गया। मैदान में खड़े हुए अल्लाह के नबी, अल्लाह का पाक पैगंबर रो रहा है और कहता है फिर गई तेरी जब, फिर गई तेरी जब नजरे करम, और कैसी इज्जत कैसी आबरू कैसा भरम। जब तेरी नजरे करम मुझसे फिर गई, मेरा मामला तुझसे बिगड़ गया, मेरा काम तुझसे हट गया, फिर कैसी इज्जत कैसी आबरू कैसा भरम, सारा खत्म हो गया। अकेले पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम हाँ खानदान से बीवी बच्चों से हाथ झाड़कर अकेले चल रहे हैं, रो रहे हैं। बड़ा दरिया आया, कश्ती तैयार थी, यूनुस अलैहिस्सलाम उस कश्ती में सवार हो गए, जहाज में सवार हो गए। दरम्यान में पहुंचा जहाज, कश्ती अचकोले खाने लगा, डगमगाने लगा, डूबने के करीब हुआ। जहाज के कप्तान ने कहा लोगों, एक आदमी अपनी वजह से सारे जहाज का बेड़ा गर्क न करे, सबको गर्क न करो। कौन है जिसका मामला अपने मौला से बिगड़ गया हो, वो सामने आ जाए। कोई गुलाम है जो अपने आका से भागकर आया है, कोई बेटा है जो माँ बाप से भागकर आया है, कोई तो है ना। मेरा तजर्बा है, मुझे उम्र गुजर गई कश्ती चलाते, जब भी कोई मेरी कश्ती में ऐसा आदमी आता है तो कश्ती हचकोले खाती है। उस कप्तान का तो ये तजर्बा हो गया कि जो माँ बाप से भागकर आए, जो बीवी अपने खामिन से भागकर आए, जो गुलाम अपने आका से भागकर आए, मामला बिगाड़ के आए, कश्ती अचकोले खाती है। कभी हमने भी सोचा अरे जिना कर करके हराम खा खा कर जिंदगी बसर कर रही है, क़यामत वाले दिन कश्ती अचकोले ना खाएगी? सारा दिन झूठ बोलते हैं, सारा दिन बदमाशी की नीयत है हमारी। जनाब सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम कप्तान के सामने आ गए, रोते हुए फरमाने लगे मेरा मामला मेरे अल्लाह से बिगड़ गया, मुझे दरिया में फेंक दो, मुझे समंदर में फेंक दो, मेरी वजह से सबका नुकसान ना करो। कप्तान कहने लगा, लोग भी कहने लगे ना जी ना, ऐसा खूबसूरत आपका चेहरा, ये ऐसी शक्ल तो हमने आज तक देखी ही नहीं, आप तो ऐसे गुनाह ऐसे काम कर ही नहीं सकते। नबी की सूरत बखरी, नबी की सीरत बखरी, नबी की आंख बखरी, नबी का नाक निराला, नबी के लब निराले, नबी के हाथ निराले। यूनुस अलैहिस्सलाम बार बार फरमाते हैं मुझे फेंक दो, लोग बच जाएंगे।
कुर्रा अंदाजी की गई, सबके नाम लिखकर कुने डाले गए। नाम निकला यूनुस अलैहिस्सलाम। यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकलता है, मगर लोग फिर भी धक्का देने को तैयार नहीं। ऐसी खूबसूरत चेहरे वाली शख्सियत, बॉडी निराली, शक्ल सूरत निराली, सारा निजाम निराला, नहीं जी। 3 मरतबा कुर्रा डाला गया, 3 मरतबा कुर्रा डाला गया, यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकलता है। लोग फिर भी धक्का देने को तैयार नहीं। और बात क्या है वो मैं आपको पहले बता चुका हूं, लिख के रखा करो। बात याद रहेगी तो बात में मजा आएगा ना, सारा नतीजा जब भी तो निकलेगा। बात सिर्फ इतनी कि 40 दिन का नाम क्यों ले दिया। ये तो मैंने तुम्हें हुक्म दिया कि मेरे आजाब से डराओ, मेरे जहन्नुम से डराओ, दुनिया के आजाब से धमकी दो, डराओ, लेकिन 40 दिन का नाम तुमने क्यों लिया। और जिस जात की मैं बात कर रहा हूं कुरान करीम में जिक्र है, ये नबी की बात है, पैगंबर की बात है, ताज नबूवत वाले की बात है, किसी वली की बात नहीं। जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम सामने आए, फरमाने लगे लोगों तुम मुझे नहीं फेंकोगे, नहीं डालोगे, कश्ती गर्क होने के बिल्कुल करीब है, जहाज करीब है, गर्क हो जाए। यूनुस अलैहिस्सलाम ने खुद ब खुद समंदर में छलांग लगा दी, खुद ब खुद छलांग लगा दी। ये इतने लोग बच जाएं, इतनी जानें बच जाएं, इतने इंसान बच जाएं। अल्लाह पाक ने आवाज दी और दरिया समंदर की मछली, खबरदार मेरी अमानत आ रही है, इसे संभाल के रखो, एक बाल भी अगर बीका कर दिया जहन्नुम में फेंक दूंगा। समंदर की मछली, इतनी बड़ी मछली जो लुकमा बनाकर यूनुस अलैहिस्सलाम को अंदर निगल गई। फरमाया व इन्ना यूनुसा लमिनल मुरसलीन, बेशक यूनुस अलैहिस्सलाम मेरे जलीलुल कदर पैगंबर, इज़ अबका इलल फुल्किल मशहूल फसाहमा फकाना मिनल मुदहदीन फल्तकमहुल हूतु वहुवा मुलीम। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल गई। और मुफस्सिरीन ने लिखा है अगर आपकी तबीयत हाजिर है, इस मछली को और बड़ी मछली निगल गई। इस मछली को, ये कितनी बड़ी होगी जो यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल गई, और फिर इस मछली को और बड़ी मछली निगल गई। एक अरसा गुजर गया, यूनुस अलैहिस्सलाम जैसा पैगंबर, अल्लाह का बरगुज़ीदा नबी मछली के पेट में है, समंदरों की गहराइयों में है, ताहतुस्सरा में चली गई वो मछली। जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में जिंदगी बसर कर रहे हैं। वहां ताहतुस्सरा में जमीन के सबसे पहले सबसे नीचे के तबके में पत्थर है, कंकरियां हैं, अल्लाह का नाम लेती हैं, अल्लाह का नाम बुलंद कर रही हैं। यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक का नाम वहां पत्थरों से सुना। कंकरियां थी, पत्थर थे, मालिक का नाम ले रहे थे, तस्बीह बयान कर रहे थे। यूनुस अलैहिस्सलाम के दिल में फौरन आ गई, जो इन पत्थरों की समंदर की तह में, ताहतुस्सरा में, समंदर की गहराइयों में से जो इन पत्थरों की सुनता है, वो मेरी भी जरूर सुनेगा। फौरन पुकार उठे ला इलाहा ला इलाहा, मेरे मौला तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, मेरी बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं, मेरी मुश्किल को आसान करने वाला कोई नहीं। और मेरी मुश्किल आसान कैसे करेगा, किसी को तेरे सिवा पता ही नहीं मैं यूनुस अलैहिस्सलाम कहाँ हूं। ये किसी को इल्म नहीं, ये किसी को पता नहीं, ये किसी को खबर ही नहीं। तेरे सिवा कौन जाने, ला इलाहा इल्ला अंता
सुब्हानक, मेरे मौला तू शरीकों से पाक है, तू माबूदों से पाक है, तू और कारसाजों से पाक है। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक, तेरी जात पाक है, तेरे सिवा मेरी बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं। और अल्लाह का नबी अपने आप को क्या कहता है? इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मौला मैं अपनी जान पे, अपने नफ्स पे जुल्म कर बैठा। कभी हमने भी दुआ मांगी, या अल्लाह जो मैंने कहर कमाए, जो मैंने जुल्म किए, जो मैंने तबाहकारियां की है, मौला मुझे माफी कर दे। अपने गुनाह को गुनाह नहीं समझते, अपने जुल्म को जुल्म नहीं समझते, अपने कहर को कहर नहीं समझते, अपनी हरकत को गुनाह नहीं मानते। अल्लाह पाक जल्ले शानू का पाक पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम वहां तक